Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am here with the chapter number 4. It's a Microsoft PowerPoint part 2. As you know, we have done the chapter number 3. That was the basic about the PowerPoint, that how you can create a simple project through the Microsoft PowerPoint. But in this chapter, we will learn much more about it, that how you can utilize your data for other subjects, and a little bit you can enhance your knowledge and enhance your presentations methodology through this PowerPoint part 2. So first of all, I'm going to read this paragraph so that we can understand that which things are included in your this presentations, or in this chapter, sorry. In this previous part, we introduced you to Microsoft PowerPoint helps present information visually through the creation of slides show using text and images. So we are going to highlight the important points from this presentation or from this chapter. The PowerPoint is the most important word, so that's why I am highlighting it. Microsoft PowerPoint helps present information visually through the creation of the slideshow using text, images, audio, video, and much more. And here the real word was absent, so that's why I have deleted these. And slideshow are visual documents called Microsoft PowerPoint presentation. It's really important point. You can highlight it. A carefully prepared, organized, and well-designed presentation help create and enable powerful learning environment where the audience stays focused and gains knowledge out of it. So you can see that we have prepared some important points here. We have highlighted it, and this is all about the learning objectives, that what objectives we will gain after learning this chapter. So learn how to create and deliver high quality PowerPoint presentations, learn how to organize PowerPoint presentations content for a better readability, and much more. So next, let's see what is in this plan or organized presentation content. As you know, without the powerful content, it's really you can say it's not possible to make a powerful presentation. So that's why the content is the important matter to create your presentation. You should just collect the content interesting. If your content is related to some boring topics, you can make it interesting by adding the pictures and much more things. So you can make a wonderful presentation by adding some colors, for some pictures, some videos, and so many things. So here is an example. So that's why I have selected only one fill in the blanks. Here you can see some steps, that plan your meal, prepare a recipe, buy grocery, cook your meal. These are the steps. These are the steps if you want to make a presentation. And first of all, you just plan what you want to do, and then prepare the things, which things are required. According to those things, you buy the grocery, and then you cook your meal. This is the step complete and proper step you can just do. If you follow these things, you can make a perfect recipe. And it's the same case with the Microsoft PowerPoint. If you have the wonderful content, then you can make it wonderful presentation. In this chapter, it's actually basically this chapter is a little bit theoretical, but more practicals you will find in this chapter. So it's not possible to make so many MCQs and much more things, because this is a completely practical chapter. But I am going to try to make some short questions and some short points from these chapters as well. So I am writing a point here to plan the content. So let me write here a line. To make an ideal presentation, the most important thing is its content. Okay, then
इफ़ द कंटेंट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, आपको कंटेंट अगर अच्छा नहीं है, लाइक आपको लगता है कि आपको कंटेंट जो है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन के बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसकी प्रेजेंटेशन बना लें। आप यकीन करें कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से याद भी होगा और आपको कभी भूलेगा भी नहीं। सो दिस इज़ द टेक्निक, यू कैन डू इट एंड यू कैन जस्ट यूटिलाइज योर नॉलेज एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज थ्रू दिस मेथडोलॉजीज। किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है, हर सब्जेक्ट जो है उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई यू नीड टू डू इट, आपको ये करना है। अब यहाँ पे मैंने प्लान कंटेंट के, आपने कंटेंट को प्लान कैसे करना है वो हमने ऊपर ग्रॉसरी के एग्जांपल में भी देख लिया था। तो यहाँ पे एक टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग हेल्प सेव टाइम, ब्रेनस्टॉर्म एंड गैदर योर डाटा व्हेन एवर यू आर प्लानिंग। नो दैट को देख लेते हैं एक दफ़ा। द इंटरनेट इज़ अ रिमार्केबल टूल फॉर डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। हाउएवर यू नीड टू इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन फाउंड इन योर sources based on the accuracy, validity, appropriateness and importance. So internet is the basic tool in this, know that. So I am going to highlight it. And after that you can see some points. You need to ensure that the information, after that you can see the information. You need to ensure that the information is up to date and the website doesn't ask for too much personal information and is not a scam, and then the information is well studied and comes from trusted experts. The website doesn't present inappropriate textual or visual content. मतलब आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करना ज़रूरी है, अपने माइंड में रखना ज़रूरी है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट होनी चाहिए। पहली बात तो ये, आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में जो है ना, कंप्यूटर के दौर में बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होती हैं चीज़ें और हमें जो है उनके साथ स्पीडी भागना पड़ता है। लाइक इफ़ यू रन विद दोज थिंग्स, दोज प्रोजेक्ट्स, देन यू कैन फाइंड आउट योर वे, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको नज़र आ रहे हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स हैं। The information is up to date. The website doesn't ask for too much personal information, not a scam, and then और इसके बाद information is well studied and comes from the trusted experts. ऐसे लोगों की जो arguments, जो भी आपके पास information है इंटरनेट पे, वो होनी चाहिए जो कि वाकई ही they have the knowledge and वो लोग जो है वो famous हैं इस चीज़ में। आप उनको पहले सर्च करें कि क्या वो जो information आप हासिल कर रहे हैं क्या वो valid हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आपको जहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है वहाँ पे आपको बहुत नुकसान भी होता है। अगर कोई पर्सन नया है तो उसके लिए एक ख़बर ऐसी जो कि रियलिटी पे बेस नहीं करती, इट्स रियली उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि उसको उसका नॉलेज नहीं होता। सो दैट्स वाई वो एक मसला ये होता है कि उसको रियल वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास, यहाँ मैंने टू मेक द ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन वेबसाइट डोंट आस्क फॉर टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अ स्कैम एंड इज़ नॉट अ स्कैम, मतलब वो होना नहीं चाहिए। टू मेक presentation, you information should be, एक तो वैलिड होनी चाहिए, शुड बी अप टू डेट होनी चाहिए एंड वेल स्टडीड। अच्छी तरह से आप उसको पढ़ रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जो आप बात उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात का वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपकी स्टडी जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए और आप जो इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। या आप एक जगह से बिल्कुल कलेक्ट मत करें, यू जस्ट कलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट्स, यू जस्ट फाइंड आउट, अगर अब वो आपको लगता है कि जो तमाम आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेम हैं, देन यू कैन गेट दैट, और ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, टू प्रेजेंट इट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास तमाम क्वेश्चंस का आंसर्स हैं,
आप किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, देन यू आर अ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेटर। आप अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं चीज़ों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। आपके पास नॉलेज होगा तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। द नेगेटिव पॉइंट इज़ व्हेन यू यूज़ अनऑथेंटिक वेबसाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मेंशन नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। अनऑथेंटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जो लोगों ने ऐसे ही बना के फेक किस्म की छोड़ दी होती हैं, और उनसे बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारा वायरसेस आपके कंप्यूटर में आता है व्हेन यू ओपन दोज वेबसाइट्स, और वो आपके कंप्यूटर को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। और नॉर्मली हम लोग हर जगह पे, जो लोग नॉलेज नहीं रखते वो नॉर्मली हर जगह पे जो है वो डेटा को एंटर कर देते हैं। लाइक वो आपसे कुछ पूछता है कि आपको किसी रिवॉर्ड के बदले में आपसे कहते हैं कि आप ये जो चीज़ है इसको एंटर करें, यू ऑलवेज enter that, or this is really harmful for you and your personal information. So never enter your personal information जब तक आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं हो जाता। never do that. यहाँ भी मैंने देखे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए। मैं आई होप कि ये पॉइंट आपको जो है वो फ़ायदा देंगे इसमें इंशाल्लाह ताला आपकी एग्जामिनेशन में। When searching the internet, make sure you refine your search query to get more accurate result. Refine का मतलब ये होता है कि बार बार आप सर्चिंग करें चीज़ों के ऊपर और उसके बाद करेक्ट वाला आंसर निकालें। आप बिल्कुल वॉश करके, एक पानी के अंदर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जब उसको बहुत ज़्यादा हम लोग उसके अंदर से जम्स निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनल जो उसकी टच आती है वो रिफाइंड फॉर्म आ जाती है। जैसे कि हमारे पास नेस्ले की बॉटल्स आती हैं तो वो उसमें बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म में वाटर हमारे पास आता है, एंड वी आर श्योर कि ये पानी बिल्कुल साफ़ होगा। सो दैट्स वाई द सेम थिंग विद योर इन्फॉर्मेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट तभी होंगी जब आप उन पर रिसर्च वर्क करेंगे। रिसर्च वर्क करने के लिए आपको काफ़ी सारी जगहों से गुजरना पड़ता है। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो नेवर एंटर दैट थिंग इन इट। क्रिएट एन आउटलाइन। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन क्या चीज़ होती है। जैसे कि हम एसेस भी लिखते हैं, एसेस की आउटलाइन से आपको पता चलता है कि आपका कंटेंट क्या है। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा आप किसी भी एसे का या किसी भी प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ योर आउटलाइन। नाउ दैट वी हैव आवर कंटेंट प्लान्ड एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गैदर्ड, वी विल प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप। अ गुड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन एन आउटलाइन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हियर इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन। जो नीचे एक डेफिनेशन बनी हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ पे कुछ MCQ भी हमारे बन सकते हैं। एक इस पूरे सेंटेंस को वी कैन मेक एन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस एज वी कैन टेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट कंटेंट एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक आउटलाइन, वो सारा कुछ मतलब हम आउटलाइन को हाईलाइट कर देते हैं, बिकॉज आउटलाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन। ये कंप्लीट भी आ सकता है, आप इसको शॉर्ट करके मिनिमाइज करके इफ़ यू वांट टू मेक इट तो आप इसको बना सकते हैं, बट इट्स रियली गुड कि आप इस पूरे सेंटेंस को जो है ना वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें। द आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, एज आई टोल्ड यू अर्ली कि स्ट्रक्चर पूरा जो होता है वो आउटलाइन में आता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एन आउटलाइन यूज टू ऑर्गेनाइज ऑल द आइडियाज एंड पॉइंट्स टू एफिशिएंटली एड एंड एलिमिनेट दैम एज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंटेशन। कि आपको कोई चीज़ निकालने भी है, यू कैन जस्ट एलिमिनेट फ्रॉम योर आउटलाइन। तो पूरा आपका स्ट्रक्चर जो एक प्रेजेंटेशन का होता है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे एक मेथड है, इस मेथड को आप वैसे रीड कर लीजिएगा क्योंकि मेरा मकसद आपको जो है वो शॉर्ट चीज़ों बताना है, आपको एक एसेंस बताना है ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन के थ्रू बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। नॉर्मली यू वुड वांट टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन विद अ स्लाइड दैट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन। टाइटल का मतलब होता है कि बेसिक हेडिंग क्या है आपकी, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर प्रेजेंटेशन, दैट इज title defines the purpose of your presentation. So that's why be sure to include a summary slide of what the presentation is intending to accomplish. Moreover, include a table of content. जैसे कि आपकी बुक में एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि कितने चैप्टर्स एडिट हैं, कितने टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर का एक टॉपिक है। तो वो तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मैटर करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन को भी, क्यों? बिकॉज प्रेजेंटेशन जितनी बड़ी हो या छोटी हो इसका मसला नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर वो जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं, यू हैव टू एलेबोरेट एवरीथिंग वन बाय वन। आपको करनी है, वो एलेबोरेशन करनी है। एलेबोरेशन से पहले आप यू विल ऐड सम important points about that presentation. So मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट कर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको। हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास प्रेजेंटेशन डिज़ाइन आ जाते हैं। डिज़ाइन आपको पता है कि हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि इफ़ यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन इट शुड बी अट्रैक्टिव,
बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आई ऑलवेज फोकस ऑन द थीम्स कि मुझे थीम चाहिए तो मैं उनके बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मैं हमेशा इंटरनेट से आई ऑलवेज डाउनलोड द स्ट्रक्चर्स एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव जो टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वो चीज़ें लेते हैं हम लोग ना उसमें से। The presentation are expected to look professional and engaging for the audience. At the same time, a PowerPoint presentation should be basic, simple, and not distracting. ऐसी होनी चाहिए कि जिसको understand किया जा सके और आपके तमाम points जो basic हैं वो cover हो सकें. Remember, your presentation is going to be viewed by an audience which you are trying to impress through your slides. आपकी हर स्लाइड इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आप ऑडियंस जो है वो मोर आपकी नेक्स्ट वाली स्लाइड्स को देखना चाहें. सो दिस इज़ योर प्रेजेंटेशन. यू वांट द स्लाइड टू बी अट्रैक्टिव, आई कैचिंग एंड एंगेजिंग. बी अवेयर ऑफ चूजिंग कलर दैट मे बी अनप्लेजेंट. कुछ ऐसे कलर्स चूज़ करें जो अनप्लेजेंट ना लगें, अच्छे लगें. यूज़ अ सेट ऑफ बिल्ट इन डिज़ाइन थीम्स. बिल्ट इन का मतलब होता है कि जो तमाम चीज़ें पहले से आपको प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड उसके और इसके थीम्स, वो तमाम चीज़ें वो बिल्ट इन में आती हैं. कलर स्कीम्स भी डिसाइडेड होती हैं. वो तमाम जो आपको एक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है वो आपके बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं और आप वहाँ से ले सकते हैं. आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ से ऑटोमेटिकली चूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दी हुई है, गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन. यहाँ आउटलाइंस दी हुई हैं, आपको प्रोमिनेंट हो रही हैं, लेकिन अगर वो जो आप कलर्स देखें, येलो के ऊपर मल्टी शेड्स में कलर लगा दिए गए हैं तो वो एक अच्छा लुक नहीं दे रहा है. उसको हम बैड डिज़ाइन में काउंट करेंगे. बिकॉज आपका कंटेंट जो है वो हाईलाइट होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंटेंट है. लाइटर बैकग्राउंड समटाइम यूज़ होते हैं तो वो लाइटर लें और उसके ऊपर डार्क टेक्स्ट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक प्रोमिनेंट और शिक डिसेंट लुक आती है. सेलेक्ट अ फॉन्ट साइज दैट लार्ज इनफ टू बी सीन एट द बैक ऑफ द रूम. द मिनिमम फॉन्ट साइज इज़ अ टिपिकली 24 पॉइंट्स पे जो आपका बेसिकली जो आप साइज़ लेते हैं वो 24 पॉइंट्स पे आता है. यूज़ बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर्स यूजिंग ऑल अपर केस. ये तमाम चीज़ें यहाँ पे एक टेक्सचुअल कॉम्पोनेंट आपको मिल रहा है. इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि assign a title for each slide. यूज़ सिंगल वर्ड और फ्रेजेस. अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस. मतलब बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप छोटी सी एक चीज़ लिखें, बाकी आप एक्सप्लेन करें. प्रेजेंटेशन आपके पास एक ऐसी की है कि जस्ट आपके पास सम पॉइंट्स हैं. यूज़ बुलेटेड नंबर लिस्ट. ईच बुलेट शुड बी शॉर्ट, वन लाइन, नॉट सेंटर अलाइन. सेंटर में अलाइन नहीं करना आपने, साइड पे जहाँ पे है वहाँ पे करना है. प्रेजेंटेशन में अलाइनमेंट का वो एक फॉर्मेट होता है. अब मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स. अ प्रेजेंटेशन दैट इज़ रिच एंड मल्टीमीडिया एड इंटरेस्ट. अभी यहाँ पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. हम पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड भी ले सकते हैं और कंटेंट के साथ डिस्क्राइब करने के लिए भी इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं. इमेज कोई भी आपको चाहिए होता है, जस्ट लाइक यू वांट टू ऐड सम images. The answer in the image irrelevant to the presentation. और हाँ, पिक्चर आपकी जो है वो irrelevant होगी तो फ़ायदा नहीं होगा. यहाँ पे कुछ देखें कि सिटी का नाम लिखा हुआ है दिल्ली और आगे पिक्चर बर्ड्स की है, तो इस तरह से मतलब irrelevant पिक्चर ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन की लुक ख़राब हो जाती है. Sometimes it's better to have more pictures but too many than text in a PowerPoint presentation as images work to reinforce in the main point. और ऑड पिक्चर नहीं लगाएं. अपना इमेज का कलर प्रॉपर होना चाहिए. आपकी पिक्चर सर्च करें. आप मैंने एक वेबसाइट भी शायद मेंशन की हुई है कि अगर आपको चाहिए कोई अच्छी पिक्चर लगाना है तो आप yandex.com है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी. वहाँ से आप बहुत अच्छे इमेजेस, HD इमेजेस ले सकते हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन बनानी है. आप अपने केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एवरीथिंग जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, यू जस्ट प्रेजेंट इन अ एक खाली रूम में जाएं, प्रेजेंटेशन बनाएं और उसको प्रेजेंट करें. एक तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सेकेंडली ये होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और थर्ड ये होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं. यू कैन गेट मच मोर थिंग्स एज वेल. वीडियोस अगर आप ऐड करते हैं तो आपको रेलिवेंट वीडियोस ऐड करनी है प्रेजेंटेशन के अंदर. नॉट लाइक कि आपका टॉपिक कुछ और है एंड यू आर गोइंग टू ऐड सम अदर इंटरेस्टिंग वीडियो. इंटरेस्ट तो लोग लेंगे बट आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी तो वो जो चीज़ है वो बेकार हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज ऐड द वीडियो रिलेटेड टू योर टॉपिक. दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग.
Microsoft PowerPoint slide have the pre-set slide transition and animation. अब यहाँ transition और animation में जो difference है वो ये है कि transition आपकी complete slide को move करता है और animation आपके एक object को move करता है. मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि transition आपका जैसे ये पूरा पेज मेरे सामने आता है, इसको कभी layers में लेके आएगा, कभी curtains में लेके आएगा, आपके styles different हो जाएंगे. लेकिन जो आपकी animation है वो आपका कोई एक object, जैसे कि आपने कोई name लिखा, कोई टाइटल दिया, कोई पिक्चर दी, तो उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे. बाकी चीज़ें जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेगा. यहाँ चले जाते हैं. देखें नीचे को नज़र आ रहा है कि हमने एक चार्ट वाली एक प्रेजेंटेशन दी इस बुक में जो मौजूद है. सो यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ थिंग्स और प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं. टू समराइज द अबव, डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन स्लाइड विद क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन माइंड. ट्राई टू स्टिक टू द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट हेल्प यू कम्युनिकेट योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली. क्विक कॉम्प्रिहेंशन. Slides should aid quick कॉम्प्रिहेंशन एंड सपोर्ट टू द मेन पॉइंट्स. कि आपके पास मेन पॉइंट्स होने चाहिए. ये नहीं कि आपने भरी हुई है अपनी स्लाइड और आप बोलते जा रहे हैं, उसको रीड करते जा रहे हैं. दिस इज़ नॉट द वे. मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट. मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. आपका कॉन्टैक्ट आपकी स्क्रीन से ज़्यादा आपके ऑडियंस के साथ होना चाहिए. आप मेन जो पॉइंट्स हैं वो लें. मैं किसी इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन प्रेजेंट द डाटा इन फ्रंट ऑफ. मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं खुद प्रेजेंटेशन दूंगी. आपको आइडिया हो जाएगा दैट व्हाट इज़ द मेथड टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन. कॉन्फिडेंट रहें. स्पीक विद क्लैरिटी. आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए. वो उसी सूरत में हो सकते हैं इफ़ यू हैव ग्रेट नॉलेज. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कांट डू इट प्रॉपरली, यू कांट present a successful presentation in front of the audience. So that's why here is a chapter review. Only one point is added here, is outline, and we have done this already in the previous pages. So outline is the important word. I have highlighted it. Review questions are not included in your examination because मिड टर्म के बाद वाला सिलेबस एडिड होता है, ये वाला नहीं है. सो बट आप एक दफ़ा देख लीजिएगा इनको. और बस आज की जो प्रेजेंटेशन है, ये वाली प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होती है. आई होप कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए होंगे. अपना कमेंट्स कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके. उनको बुक से हट के जो सर्चिंग करनी पड़ेगी उससे बेहतर है कि वो यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको हासिल करें. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़.